السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ حاضر ہیں جی ناول نیلوفر، رمشا ریاض کے قلم سے لکھا گیا، قسط نمبر 11۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ سامن سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ ہی کن پٹی مسل رہا تھا۔ حرم کی کال نے اس کو پریشان کر دیا تھا۔ کیا ہوا بھائی، سب خیر؟ امیرہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی۔ اگر تمہیں کوئی بیوقوف بنا رہا ہو یا پھر تم معصوم ہو تو یہ غلطی تمہاری ہے۔ سامن نے گیئر بدلا۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ امیرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو خود کو سید کہتا ہے وہ قادیانی ہے میرو۔ سامن نے ہونٹ بھینج کر کہا۔ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ ہنسی۔ سامن کو نہ گمان ہوتے ہیں نہ غلط فہمیاں۔ یہ ایک گینگ ہے جو خود کو سید بتاتا ہے، پھر اچھے گھروں میں شادیاں کر کے لوٹ مار کرتے ہیں، لڑکیوں کو ٹارچر کر کے اپنے عقیدے پر لاتے ہیں۔ وہ سرد روی میں بولا۔ آپ کب سے دیندار ہو گئے بھائی؟ اس کا سوال سامن کے منہ پر تماچا تھا۔ گاڑی ایک دم بریک سے رکی۔ آج کل سب نارمل ہے بھائی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈس۔ کتنے بالی ووڈ ایکٹرس ہیں جنہوں نے غیر مسلموں سے شادی کی۔ آپ خود کو ہی دیکھ لیں، آپ بھی تو یہی کرتے ہیں۔ لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا، گلے ملنا ملانا، یہ سب اب نارمل ہے۔ اور ہاں، مجھے پتہ ہے کہ وہ قادیانی ہے، وہ مجھ سے سچا پیار کرتا ہے۔ اس لیے مجھ سے خود بتایا۔ وہ زہر اگل رہی تھی۔ بالی ووڈ میں اور حقیقت میں فرق ہے امیرہ۔ تم مسلمان ہو، بے شک میں عملاً اچھا مسلمان نہیں ہوں، مگر میں کلمے میں شرک نہیں کرتا۔ میں گناہ گار ہوں، مشرک نہیں۔ وہ اس پہ تپا تھا۔ مجھے بحث نہیں کرنی بھائی، اگر تمہاری اس سے شادی نہ ہوئی تو۔ سامن نے اسٹیئرنگ پر گرپس بڑھا کر سامنے دیکھا۔ تو میں جان دے دوں گی، وہ تھوک نکل کر بولی۔ سامن نے ریس دی اور گاڑی اڑانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ تھوڑی دیر میں ہی گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں میرو، میں تمہیں موت سے ڈرا رہا ہوں۔ وہ ہنسا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، وہ چلائی۔ اگر تم نے اس لڑکے سے ملنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ میں پاگل ہو جاؤں گا، اور پھر تم دیکھو گی کہ میں کرتا کیا ہوں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ امیرہ کا ماتھا ڈیش بورڈ سے جا لگا۔ وہ ماتھا سہلاتی اوپر ہوئی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مجھے میرا قانون آزادی دیتا ہے۔ وہ چیخی۔ یہاں قانون میں طے کرتا ہوں گڑیا، اور میری سلطنت میں کوئی بغاوت کرے یہ مجھے برداشت نہیں۔ وہ اس کے جبڑے کو سخت ہاتھوں سے پکڑ کر بولا۔ وہ درد سے کرائی، جھٹکے سے جبڑا چھوڑا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ شاباش، اب نارمل ہو جاؤ، گھر جاتے ہیں، یہی سیر سپاٹے تھے۔ وہ اس کو گردن ٹیڑھی کر کے دیکھنے لگا۔ ایک قاتل مجھے دین سکھائے گا، وہ تنفر سے بولی تھی۔ سامن کا جبڑا بھج گیا۔ مرتد ہونے سے قاتل ہونا بہتر ہے، وہ سرد ٹون میں بولا۔ وہ استہزاء سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم نے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رقیہ مٹل چھین رہی تھی۔ لالین گمسم سی اس کے سامنے بیٹھی تھی، فون ہاتھ میں تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ رقیہ نے 2 دانے منہ میں ڈال کر اسے دیکھا۔ سوچ رہی ہوں اسلام کتنا آسان دین ہے، مگر ہم نے اسے کتنا مشکل بنا دیا گناہوں کو نارمل کر کے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انسٹا پر میرے فیڈ میں اسلام آباد میں لڑکیوں کی ویڈیوز آ رہی تھیں۔ وہ لڑکے کم اور خواجہ سرا زیادہ لگ رہے تھے۔ مطلب یہ کیا ہو گیا ہے؟ لڑکیاں لڑکوں کے سٹائل فالو کر رہی ہیں اور مرد؟ لالین نے نفی میں سر ہلایا، فون ٹیبل پر دھڑ سے رکھا۔ دل ہی میلا ہو گیا میرا، ابھی انسٹا ڈیلیٹ کرتی ہوں۔ لالین نے منہ بسورا۔ تمہارے ایک ڈیلیٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم نے گناہوں کی جسٹیفیکیشن شروع کر دی ہے۔ ہم نے یہ سب نارمل قرار دیا ہے۔ ہماری مشہور شخصیات ملک سے باہر جا کر برہنہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے مان لو کہ پردہ اللہ سے نہیں، پاکستان سے۔ ہم نے نیک نکنا بننا نہیں، یہ والی تھیوریوں پر چلنا شروع کر دیا۔ مٹر جب چھیل دیے گئے تو رقیہ لالین چائے بنانے کچن میں آ گئیں۔ یہ نیلوفر کی عادت تھی، وہ ہر شام چائے پیتی تھی۔ تو آپ یہ بتا رہی تھیں کہ کچھ، لالین نے شرف پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ رقیہ الائچی دودھ میں ڈال رہی تھی۔ پتہ ہے، ہم گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ ہم نے طے کر لیا ہے، جو ہم سب کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ وقار پانے کے چکر میں ہم اکثر غلط چیزیں سرزد کر دیتے ہیں۔ اب وہ چائے کی پتی ڈال رہی تھی۔ لالین غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چائے کی پتی آخر میں ڈالو تو رنگ اچھا بنتا ہے، وہ لالین کو حیران ہوتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ پر کچی کچی لذت ہوتی نہیں؟ لالین نے شبہ سے پوچھا۔ ہاں، مگر نیلوفر کو یہی چائے پسند ہے تب۔ وہ مسکرائی۔ آپ کو ان کی ہر چیز پتہ ہوتی ہے،
وہ حسرت سے بولی۔ نہیں، مجھے بس ہر چیز وہ پتہ ہے جو انسان ظاہر کرتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ لالین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جو کپ اتار رہی تھی۔ ایک انسان اپنی شخصیت بہت سے نقابوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ کون سا نقاب کہاں پر اتارنا ہے یہ وقت اور انسان خود طے کرتا ہے۔ بہرحال تمہارا ٹاپک رہ گیا، وہ پھر کبھی ڈسکس کرتے۔ لو چائے پیو، وہ اس کی طرف قد بڑھا کر بولی۔ نو وے، مجھے نہیں پسند۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ رقیہ نے اسے خفکی سے دیکھا۔ میں چائے پینے والوں پہ یقین نہیں کرتی، وہ ٹرے میں کپ رکھ کر بولی۔ لالین مسکرائی۔ کوئی نہیں، میں چائے پینے والوں پہ نہیں کرتی، وہ شیلف سے اترتے ہوئے بولی۔ اب وہ باہر آ گئی تھی جہاں نیلوفر آنکھوں پر چشمے پہنے دیوار میں ٹنگے ایک بورڈ پر چھوٹے چھوٹے تیر مار رہی تھی۔ اس کا ہر نشانہ صحیح مقام پر لگتا۔ لالین اسے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جنہیں ہم جیسی زندگی جینے کی خواہش ہوتی ہے، مگر وہ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ اگلے انسان پر کیا بیت رہی ہے۔ ایک نئی صبح، ایک نئی امنگیں اور نئی ارمانوں سے پھر سے چوکٹ بھر دی۔ ہواؤں نے رخ بدلا، چڑیاں ثنا میں محو تھیں، سورج ہلکی ہلکی کلکاریاں کرتا پھر سے طلوع ہوا۔ نیلوفر ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سوئی رہی، وہ اوندھے منہ سوتے تھی، بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ اس نے آواز سے تنگ ہو کر تکیہ منہ پر رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی۔ تر و تازہ ہونے کے بعد وہ چینج کر کے نیچے آئی۔ سیڑھیوں کے زینے اترتے اس نے بالوں کو جوڑے میں باندھا۔ وہ لیلک رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ سائڈ میں تھا، گلے میں ایک لاکٹ اور پیروں میں خصے تھے۔ وہ اتر رہی تھی کہ آریز اسے کھڑا دکھائی دیا۔ سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھا، ہاتھ سے ٹیبل کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ آریز نے سر کو خم دیا۔ رقیہ اس کے آگے ناشتہ رکھ رہی تھی۔ بیٹھیں، وہ آریز کو آفر کرنے لگی۔ جی، وہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھا۔ لالین اور رقیہ کچن میں تھی جو کہ بالکل ڈائننگ ٹیبل کے سامنے تھا۔ لالین مسلسل آریز کو دیکھ رہی تھی جس کے ہاتھ بات کرتے ہوئے کانپ رہے تھے اور زبان بار بار پھسل رہی تھی۔ رقیہ نے لالین کی آنکھوں کی پیروی کی۔ بوکھلا رہا ہے؟ رقیہ نے گہرا سانس کھینچ کر کہا۔ ظاہر ہے سامنے نیلوفر ہو اور کوئی روانی برقرار رکھے۔ امپاسبل، لالین نے حسرت سے کہا اور ہونٹ بیچے۔ کوئی ضروری بات کر رہے ہیں؟ لالین نے تجسس سے پوچھا۔ جا کے کرو چاپلوسی، رقیہ تنک کر بولی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ہاں، برا مان گئی۔ وہ فوراً بات کا رخ موڑ گئی۔ آریز، آپ کی چھان بین کی ہے میں نے۔ آپ کا جو آبائی گاؤں ہے وہ میرا بھی ہے۔ نیلوفر مسکرائی۔ آریز نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ آپ کی آنکھیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ نیلوفر کے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ آریز نے ٹھنڈی سانس کھینچی۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آریز کو شوق کی کیفیت میں دیکھ کر بولی۔ نہیں، بس آپ کی آنکھیں کسی کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ کس کی؟ نیلوفر نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تھی کوئی آپ کی ہم شکل شاید۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ تب ہی کال کی وجہ سے ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا۔ آریز ہونٹ بھینچ کر اٹھا۔ نیلوفر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسے دیکھا کرتا تھا میں اس کی جھیل سی آنکھیں، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو پہلی بار سمندر۔ وہ اٹھ کر دور گئی۔ آریز ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر دیوار کے بس میں ٹنگی ایک بڑی سی فریم پر پڑی۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے، دل اچھل کر جیسے حلق میں آیا، قدم بے ساختہ اس کی طرف اٹھنے لگے۔ یہ ایک فیملی فوٹو تھا۔ ماں باپ صوفے پر ساتھ بیٹھے تھے۔ پیچھے 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا کھڑا تھا۔ ان سب میں ایک چیز کامن تھی، نیلی آنکھیں۔ نور النساء کے علاوہ سب کی آنکھیں نیلی تھیں۔ سراسا اکڑ کر بیٹھے تھے جبکہ بیوی کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے زبردستی مسکراہٹ سجا کر بیٹھی ہیں۔ لڑکا کم عمر تھا۔ آریز کی نظر جس تصویر پر ٹکی وہ ماروق تھی۔ بہن کے بازو کو پکڑے مسکراتی، سر پر دوپٹہ تھا مگر فرنچ بنا دکھ رہا تھا۔ آریز کی مٹھیاں بھینچی، تبھی اس نے محسوس کیا نیلوفر اس کے پیچھے پڑی تھی۔ ماروق سے آپ کا رشتہ؟ بہن تھی میری۔ اس کی بات مکمل ہوتی وہ فوراً آگے بڑھے اس کے برابر کھڑی ہوئی۔ آریز نے پار رکھی کرسی کا سہارا لیا، دل کو سوئی چبھی۔ نیلوفر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تمہیں پہلی بار دیکھا تو لگا تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے، مگر میں غلط تھی۔ میں نے تمہیں دیکھا ہوا کہیں نہیں تھا۔ میں نے تمہیں صرف سطروں میں پڑھا تھا جو ماروق نے لکھی تھی۔ وہ تصویر کے قریب ہوئی، اس پر ہاتھ پھیرا۔ آریز نے تھوڑی مسلی، سر جھکا ہوا تھا۔ تصویر میں 5 نفوذ ہیں۔ آریز، اس وقت ان میں سے صرف ایک بچہ ہے اور وہ
मैं हूँ। मेरे पास सिर्फ तस्वीर है, तुम्हारे पास ख़ानदान है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे ख़ानदान सिर्फ तस्वीर में तुम्हारे साथ हो तो तुम बेशक इनसे दूर रहो, और अगर तुम्हें ख़ानदान की परवाह है तो लौट जाओ इनकी तरफ। वो फीका सा मुस्कुराए उनकी तरफ मुड़ी। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और ये सफ़र, कहीं पीछे रह गए तो किसी के साथ चल नहीं सकोगे। फ़ारिद कल आ जाएगा, शबनम आंटी की फैमिली भी कल आ जाएगी, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। घर से हो आओ, वो इसको समझाने वाले अंदाज में बोली। कोई इंतज़ार करने वाला ही ना हो तो वो टूटे लहजे में बोला, तुम्हारी बहन है, आरएस बहनों से ज़्यादा कोई इंतज़ार नहीं करता। एक अदद माँ है जो इंतज़ार में बाल सफ़ेद कर देती है। बदबख्त होते हैं वो लोग जिनके वालिदैन होकर भी वैसे फिर हैं। वो उसे कुछ जताकर बोली। वो थूक निकल कर उसकी तरफ देखने लगा। नीली आंखों में कोई हमदर्दी सी थी। वो नज़रें झुकाकर उठा, फिर हारे हुए कदम उठाता चला था। नीलोफर तस्वीर की तरफ मुड़ी। तुम्हारी चॉइस बेहतरीन थी मारूफ। वो मुस्कुराई, फिर पलट गई। अब अपने साथी कमरे में जा रही थी। रात की तारीकी में नीलोफर अपने कमरे में बेचैनी से करवट बदल रही थी। बार बार एक चेहरा उसके सामने आ रहा था। उसने कंबल दूर ढकेला, आंखें बंद की। वो डायरेक्टर के बेटे पर हाथ उठा रहा था। उसे वो मंजर याद आया। माजी। नीलोफर अब पूरी हिम्मत से चल रही थी। कैमरामैन को दूर करता फ़ारिद उसके शाना बशाना था। गाड़ी तक आई तो फ़ारिद ने दरवाज़ा खोला और ख़ुद भीड़ को दूर करता गाड़ी में बैठा। वो तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से निकल गया। ओह माय गॉड, ड्राइविंग स्किल्स, शिरी ने मुंह पर हाथ रखकर कहा था। कानों में लगे ब्लूटूथ से मध्यम भारी आवाज़ आई, जो इसको सिखा रही है मैं उसका उस्ताद रह चुका हूँ। कोई हंसा था। वाह ग्रेट, आज का शो तो नीलोफर के बॉडीगार्ड के नाम। शिरीन ने तमस्खराना कहा। दूसरी तरफ से राब्ता कट चुका था। नो प्रॉब्लम, वो फ़ोन पर उंगली रखकर बोली। चलो चलते हैं। खुद बड़बड़ाकर वो हाल की तरफ जा बढ़ गई। वो शीशे में फ़ारिद को देख रही थी। माफ़ कीजिएगा, मगर एक शरीफ मर्द गवारा नहीं करता कि कोई औरत उसे शीशे से देखे। वो इसके जुमले को उसी को लौटा रहा था। उसका ये कहना, और नीलोफर ज़ोर से हंसी। उसका कहका बेसाख्ता था और दिलकश भी। फ़ारिद ने उसे शीशे में देखा। वो जो मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। क्या आपको किसी ने बताया आप बहुत बड़ा प्यारा हंसती हैं? फ़ारिद ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया। वो चुप हुई, फिर तौक़ुफ़ के बाद बोली, शुक्रिया की क्या ज़रूरत है, आप वाकई काबिल तारीफ़ हैं। वह फिर से मुस्कुराया था। फ़ारिद, जो तुमने किया उसके लिए शुक्रिया, वो बात की वजाहत देकर बोली। वो मेरा फ़र्ज़ था। मर्द को नहीं जचता औरत को गाली दे या हाथ उठाए, वो भी भीड़ में। आपकी बात ना होती तो इस वक्त वो हड्डियों के डॉक्टर के पास होता। वो सर्द लहजे में बोला। नेकियां लौट कर आती हैं। हाँ फ़ारिद, वो उसे देख कर बोली। हैं? वो हैरान हुआ। कुछ नहीं, घर ले जाओ। वो सीट से सर टिकाकर बोली। आंखों पर चश्मा सेट किया। आंखों के किनारे गीले होने लगे थे। फ़ारिद मरवान के लिए नीलोफर के दिल में इज़्ज़त और बढ़ चुकी थी। वो इस्लामाबाद पहुंच गया था। सिर्फ उसके एक बार बुलाने पर वो उसे बुरा भला कह गई थी और वो रूठा था। वो एक हाथ से ड्राइव करता था। बैक व्यू मिरर से देखने से मना किया तो फिर उसने कभी नज़र नहीं डाली। वो शबनम आंटी से उसके बारे में बातें करता था। उफ़, वो एकदम उठकर बैठी। जज्बात कैसे हावी होते हैं मुझ पर। वो झुल्ला कर बोली। कंट्रोल नहीं लो, कंट्रोल, लंबी सांस लो। वो सिर्फ शराब है, आंखों का धोखा, और वैसे भी मुझ जैसी लड़की से वो क्यों प्यार करेगा। तरह तरह की सोचें वो उसे पूरी रात जगाने वाली थी। वहाँ पर दिल पर दस्तक दे चुकी थी। अब उसका यूं बेचैन होना तो बनता था। अगली सुबह आज फ़ारिद खुद आया था। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी कि फिसल गई। लालैन फ़ौरन उसकी तरफ लपकी। आप ठीक है? वो इसको सहारा देते हुए फ़िक्रमंदाना लहजे में पूछने लगी। आई थिंक मोच आ गई है, प्लीज़ ज़रा हेल्प करना। वो इसका हाथ पकड़कर सोफ़े तक आई। उसने पैर लंबा किया। रुकैया तभी उनकी तरफ लपकी। ओहो नीलोफर, आप अपना ध्यान नहीं रखती। बिल्कुल भी, सीढ़ियाँ ध्यान से सीढ़ियाँ उतरनी चाहिए ना। रुकैया ने उसे डांटते हुए उसके पैर का जायज़ा लिया, फिर एक झटके से पैर को दाएं बाएं झटका देकर ठीक कर लिया। शुक्रिया रुकैया, आप ना होती तो क्या होता। नीलोफर मुस्कुराई। मैं भी यही सोचती हूँ, मैं ना होती तो क्या होता। वो अजीब तरह से हंसी। आप आराम करें, कोई चीज़ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा। लालैन ने हमदर्दाना अंदाज में इसके गाल थपका थाम कर कहा।
ज़रूर, आप लोग अपना काम करें, मैं ठीक हूँ। वो जबरन मुस्कुराई। कुछ देर बाद कोई शख्स सीढ़ियों पर गिरा तेल साफ़ कर रहा था। बच गई फिर, किसी ने गंभीर लहजे में कहा। कमरे में खड़ा आरेज अलमारी से कपड़े निकालकर बैग में डाल रहा था। उसे अब गाँव जाना था। उसने सोच लिया था कि अब जिम्मेदारी से काम लेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शबनम आंटी की तबीयत नासाज थी। सीढ़ियाँ उतर के जैसे ही वो आया, शबनम आंटी बेसुध थी। वो फ़ौरन बाहर की तरफ दौड़ा। साथ वाले घर में पड़ोसियों की गाड़ी थी। एक खातून इसके साथ आई। किसी तरह आरेज ने उन्हें गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ बढ़ गए। इसका बैग वहीं पर ही गिर गया था। किसी ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। एमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर उसने जल्दी से फॉर्म भरा। स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। आरेज को पसीने छूटने लगे। उसने फ़ौरत को कॉल की और सूरत हाल बताई। कुछ देर पहले इनके बेटे और बहू ने लैंडिंग की थी, मगर वो पहले मेके गई थी। आरेज एक बेंच पर बैठे दुआएं मांग रहा था। कुछ देर बाद फारिद भी आ चुका था। वो दोनों बेंच पर बैठे दुआएं कर रहे थे। अनजाना अटैक था। डॉक्टर के कैबिन में बैठे वो दोनों सुन हुए। औरतों की हार्ट वेन्स बहुत ज़्यादा रोने या मायूस रहने से डैमेज होती हैं। डॉक्टर ने उनके सामने लैपटॉप की, जहाँ पर रिसर्च थी। इस उम्र में ये 10 में से 3%। ये लोग इस बीमारी से बचे रहते हैं, बाकी सब में अटैक हो जाते हैं। ये उम्र का वो दौरानिया होता है जब आपको ज़िंदगी का हर काम पछतावा मालूम होता है। मरीज़ को लगता है उसे सबने छोड़ दिया। तन्हाई का खौफ शायद कहना ठीक होगा। डॉक्टर ने होंठ खींचकर कहा, और ये कोई पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी 2 बार आ चुका है। बाजू का ज़्यादा खुशी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। खैर, मैं ये दवाई लिख कर दे रहा हूँ, इनका ध्यान रखें। डॉक्टर अब चिट पर कुछ लिखने लगा था। वो खामोशी से उठे, मुसाफा किया और पलटने लगे। वैसे तुम दोनों इन खातून के क्या लगते हो? डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप टेबल पर छोड़ते हुए पूछा। मुँह बोले बेटे, फारिद ने पलट कर कहा और फिर मुड़ गया। डॉक्टर मुस्कुराया। शुक्र है खुदाया, अच्छे लोग भी हैं। वो काम में लग गया। फारिद और आरेज अब शबनम आंटी को लेकर जा रहे थे। आराम से फारिद ने चारपाई पर बैठा इन पर चादर दरुस्त की। आरेज सारा वक्त खामोश रहा था। शबनम आंटी का बेटा आने वाला था। इनके सो जाने पर फारिद बरामदे से होता सीढ़ियों के जीने चढ़ रहा था कि आरेज को देखा, जो बैठा था। उसने सर हाथों में गिराया हुआ था। फारिद भी चार पर जाकर बैठा। फारिद कुछ भी नहीं बोला। अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आने लगी थी। आरेज रो रहा था। फारिद ने बाजू बढ़ाया और साथ लगाया। बी ब्रेव मैन। उसकी पेट थपक रहा था। कितने जाहिल होते हैं हम लोग, जिंदा लोगों की कदर नहीं करते और मरने पर न्याज़ी और खैरात बांटते हैं। आरेज ने नमदीदा आंखों को साफ करते हुए कर्ब से कहा, इंसानी फितरत कम ज़रफ़ी है। फारिद ने ठंडी सांस भरी। कल जा रहा हूँ मैं कहा। आरेज ने ज़ुकाम भरे लहजे में कहा, जानता हूँ। फारिद ने बाजू हटाया और सीधा हुआ। किसने बताया? मैंने तो नीलोफर बता रही थी। फारिद ने सरसरे अंदाज में कहा, मैंने इन्हें अभी नहीं बताया था। आरेज ने हैरत से कहा, ब्रो शी इज़ वुमन यार, दिमाग स्कैन कर लेती है। मर्द अगर एक नज़र में औरत का जिस्म स्कैन करता है तो वही औरतें मर्द की खसलत, नीयत और इसका अगला कदम भांप लेती हैं। इसलिए हैरान मत हो। फारिद उसके शाने पर हाथ रख के ज़ोर देता खड़ा हुआ। मैं गेट नहीं खोलने लगा। ये काम गुलाम तुम ही करना। फारिद जमाई रोकते हुए बोला। आरेज ने बुरा सा मुंह बनाया और बैठा रहा। वो जानता था फारिद को शबनम आंटी का बेटा नहीं पसंद। फारिद याद खिलाफे मामूल जल्दी आ गया था। उसका घर 1-1.5 घंटे के फासले पर था, इसलिए वो आसानी से आ जा सकता था। नीलोफर हाउस में इस दिन खामोशी का राज था। ऐसा नहीं था कि वहाँ लोग नहीं थे। लोग थे मगर खामोश थे। गेट पार करके उसने ऊपर बालकनी में नज़र दौड़ाई। हमेशा की तरह वो वहीं थी, ताज़ा हवा के अंदर तक महसूस करती। फारिद मुस्कुराया, फिर माली की तरफ चल दिया। वो कपड़े नॉर्मल पहनता था, वरना 3 पीस सूट इवेंट में पहनता। कुछ देर में वो गाड़ी चेक कर रहा था। जब बंद छाता और क्लच बैग हाथ में लेती नीलोफर उसकी तरफ आने लगी। उसने मस्टर्ड रंग की शॉर्ट शर्ट और हम रंग ट्राउज़र पहना था। गले पर नेट का मुरब्बा नमा डिज़ाइन बना हुआ था। शोल्डर से बाजू तक कट्स थे। फारिद ने गाड़ी का बोनट बंद किया, फिर पलटा, उसे देखा। वो करवी बॉडी की मालिक थी। फारिद ने नज़रें इधर उधर मबजूल कर ली। वो आई और पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। फारिद, आज चश्मा हॉस्पिटल चलो। वह फ्रंट सीट पर बैठा। जब नीलो ने कहा, वह ज़ोर से हंस दिया। फिर उसने हंसी रोकने की कोशिश की।
नीलोफर कनखियों से उसे देखने लगी। वो चुप हुआ। सॉरी, ज़बान काट कर बोला। तुम अच्छा हंसते हो। वो दांत भरी नज़रों से उसे देखा। जानता हूँ। वो मुस्कुराया, गाड़ी घुमाने लगा। घमंडी भी हो, वो तुनक कर बोली। अल्लाह ने इतनी अच्छी शक्ल सूरत कद काट दी है, हमें खुश भी ना हूँ। वो मासूमियत से बोला। तोबा तोबा, किसने हैंडसम कह दिया? वो चिढ़कर बोली। आपने? वो शाने उचकाकर बोला। गाड़ी सड़क पर निकल आई थी। ढलवान से वो सीधे रास्ते पर चल दिए। यकीनन तब मैंने पी रखी होगी। वो हंसी थी। पर आप तो नहीं पीती? वो हल्का सा हंसी। नीलोफर ना हंस सकी। कुछ गलत एहसास हुआ था। होते हैं ना एहसास गफलत, जैसे कोई बीच रात थप्पड़ मार दे। कोई काली कार उसके बंगले से फासले पर आकर खड़ी थी। कोई इसमें मर्द बैठा था। उसने फ़ोन लगाया। सर, मैडम निकल गई हैं, साथ एक ड्राइवर है। ओके सर, जैसा आप बोले। वो कॉल काट कर अब नीलोफर की गाड़ी का पीछा कर रहा था। सामिन इस वक्त एक बार शॉप में था। वो बाल सेट करवा रहा था। बार्बर शॉप में था। सामिन इस वक्त बार्बर शॉप में था। वो बाल सेट करवा रहा था। वो मकरूराना तर्ज में बैठा था। सेशन सीट पर बैठे वो गर्दन पीछे करके जायज़ा ले रहा था। यू आर परफेक्ट सर, बार्बर ने उसको कवर से आज़ाद करते हुए कहा। जानता हूँ, वो नाक को शहादत से उंगली छूकर बोला। कोई स्पेशल मीठअप है सर? बार्बर इसकी शर्ट ठीक कर रहा था। तुम्हें हर माह की तनख्वाह मिलती हैं मेरे अकाउंट से? वो शीशे में आईने में जायज़ा लेते पूछने लगा। सॉरी सर, वो नासमझी से बोला। पीए की तनख्वाहें मिलती हैं ना? नहीं, वो तंजिया टोन में बोला। अब वो कॉलर ठीक कर रहा था। बट सर, मैं तो पीए नहीं हूँ। वो भी बेवकूफ़ी से उसे देखने लगा। वो पलटा, फिर मुस्कुराया। उसके दांतों ने नुमाइश की। जब पीए नहीं हो तो पर्सनल सवाल मत करो। ये लो कैंची और नाइयों वाला काम करो। उस पर कुर्ती नज़र डालकर वहाँ से चला गया। तभी हरम अंदर आया। बार्बर शॉक था। हैरान ना हो, वो जामिन है। दखल अंदाजी पसंद नहीं। हरम ने पैसे इसके हाथ में दिए। वो जामिन के पीछे जाने लगा। डॉक्टर इसकी आंखों में टॉर्च लगाकर इसका मायना कर रहा था। फारिद खड़ा उसे देख रहा था। एक हाथ थोड़ी रखे। आप बैठ जाएं, डॉक्टर बोला। उस फारिद ने खड़े होने से उलझन हो रही थी। ये तीसरी बार थी जब डॉक्टर ने उससे मुखातिब किया, मगर फारिद ने अनसुनी कर दी। अब की बार नीलोफर ने फारिद को घूर कर देखा। फारिद दम भरता एक छोटे से स्कूल पर टिक गया। अब वो इनके बिल्कुल सामने बैठा था। दरमियान में एक बड़ा सा टेबल नुमा शोकेस था जिसमें चश्मे थे। डॉक्टर नीलोफर को चश्मे दिखा रहा था। वो पहनती शीशे में देखती, फिर फारिद की तरफ मुड़ती। वो बार बार नफ़ी में सर हिला रहा था। नीलोफर ने होंठ भींचे। अब की बार फारिद ने खुद चश्मे सेलेक्ट किए। चश्मों की फरीन मजबूत थी और नीलोफर को खुद भी पसंद आए। फारिद ने उसे थंबनेल दिखाया। थैंक यू डॉक्टर। वो मुस्कुराई। कुछ मिनट बाद फारिद शीशे के दरवाजे को धकेलते उसे महासरे में लिए गाड़ी की तरफ चल रहा था। सामिन ज़रा मुस्कुरा रहा था। गाड़ी चलती जा रही थी जब अचानक ब्रेक लगी। क्या हुआ हरम? वो चौंक कर बोला। सर, वो सामने। हरम ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या सामने छुड़ैल खड़ी है हरम? वो सर्द लहजे में पूछने लगा। सर, अनीता ठोकर पिस्टल लेकर खड़ी है, हरम ने इंकशाफ किया। फेल्ड प्रोडक्ट, वो बड़बड़ाया। फिर अपनी गन निकाली और गाड़ी से बाहर निकला। वो लॉन्ग क्रिस्टल ग्राउंड पहने थे जिसके बाजू बरहना थे। गले में एक सब्ज़ रंग का चमकता नेकलेस था। हाथों में पिस्टल थी। उसने पिस्टल कनपट्टी पर रखकर जामिन को ललकारने वाले अंदाज में खड़ी हुई। सामिन ने तफ किया और इसके बराबर खड़ा हुआ। वो हिल्स में बिल्कुल उसके बराबर थी, वगरना वो इससे छोटी थी। तुम साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गई? वो सख्ती से बोला था। तुम इस नीलोफर के पीछे जा रहे हो ना? वो कनपट्टी पर रखी पिस्तौल की गिरफ्त बढ़ाकर बोली। उफ अनीता, अनीता, तुम्हें कितनी बार कहा पागलों के डॉक्टर बहुत हैं। क्यों हराम मौत मरना चाहती हो? हाँ, ज़िंदगी से तंग हो तो किसी ट्रेन के तले लेट जाओ, जहर पी लो। मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं अपने हाथ गंदे करूं? वो अपनी पिस्तौल इसके दूसरे सिरे पर रखकर बोला। फिर पलटकर इसके साथ खड़ा हुआ। तुम्हारी गन में गोलियां नहीं है ना? वो इसके कान में भारी आवाज़ में बोला। अनीता के हाथों से गन छूटी। अफसोस, वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। अगली बार तुम्हें नहीं मारूंगा, खुद को शूट कर दूंगा। निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। बंदे में तो कुछ तो इज्जत नफ्स होती है। हो खैर, तो मॉडल लोगों की तो वो भी
नीलोफर भी इसी गली की वो इसके जुमला पूरा होने से पहले ही बोलने लगी थी कि थप्पड़ कब इसके गाल छू गया उसे पता ही ना चला। अलबत्ता वो लड़खड़ाई। इसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं, समझी? ज़िद है वो मेरी, मेरी कुल कायनात है, और कोई उसके बारे में कुछ भी बोले मैं उसकी ज़बान काट कर कौवों को खिला दूंगा। वो इस पर गलत नज़र डालकर पलटा। वो शौक में रही। चलो हरम, ड्राइवर को कहकर अब गाड़ी में बैठा। अनीता ने गुस्से से गाड़ी को लात मारी, उल्टा ही उसे लग गया। वो पैर पकड़े रो रही थी। वापस आते हुए गाड़ी किसी नुकीली चीज़ पर से गुजरी के टायर पंचर हो गया। नीलोफर ने बेचैनी से सर शीशे से बाहर निकाल कर देखा। फारद उतर कर टायर चेक कर रहा था। कड़ी धूप थी, ऊपर से टायर नीलोफर ने झिंझला कर फारिद को देखा, फिर अपनी सीट पर पड़ी छतरी को। टायर बदलना पड़ेगा। फारिद ने टायर का जायज़ा लिया। वो डिग्गी से टायर निकाल रहा था। नीलोफर भी गाड़ी से उतरी। वो पानों की मदद से टायर निकाल रहा था और उसके हाथों में महारत थी। नीलोफर फिर से मुतासिर हुई। वो पसीना साफ कर रहा था। वो टायर फिट करने लगा था कि वो पीछे खड़ी हुई छतरी खोल दी। फारद पलटा, एक नज़र उसे देखा। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप छाँव में हो, ये धूप मेरी खूबसूरती का क्या बिगाड़ लेगी। वह शरीर हुआ था। चुप होके काम करो लड़के, तारीफ़ें नहीं करते थकते तुम। वो इसको डांट कर बोली। शहज़ादी नीलोफर। वो उठा, उसके बराबर खड़ा हुआ। जी गुलाम मरवान। वो आंखें मटका कर बोली। फिर से नीली आंखों ने तीर छोड़ा। कुछ नहीं। वो थूक निकल कर बैठा और टायर फिट किया। वो इस पर छाँव कर रही थी। खुद वो पसीने से सुर्ख हो गई थी। कोई नहीं देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा न लगा। हरम ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो उस तरफ बढ़ा जहाँ वो सामने थी। वो हंस के कुछ कह रहे थे। लड़का नीलोफर से छाता ले रहा था। लड़के ने पॉकेट से टिश्यू निकाल कर नीलोफर को बढ़ाया। वो मुस्कुराकर थाम गई। लड़का आबदा से उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा था। वो इतरा कर बैठ रही थी। लड़का इससे खूबसूरत था। इसका पता करवाओ, हरम को कहता वो सिगरेट फूंकने लगा। तब तक गाड़ी जा चुकी थी। कहाँ फिर है लफंगों की तरह? इसको अपनी शोहरत का कुछ ख्याल है भी या नहीं? ये सुखरात साहब थे जो फ़ोन पे हरम से बहस व तकरार में मसरूफ़ थे। अगर वो बेवकूफ़ है तो तुम किस लिए हो हरम? इस हड हराम को घर लाओ। वो गुस्से से टहल कर बोले। इस वक्त सफ़ेद कुर्ते पर भूरी जैकेट पहने, दाढ़ी में कुछ कुछ सफ़ेदी थी, मजबूत आसाब तेवरी चढ़ी हुई थी। गुस्से से कॉल काट कर रॉकिंग चेयर पर बैठ गए। चेयर मुसलसल हिलने लगी। कुछ लफ्ज़ गर्दिश करने लगे। आपका बेटा कुत्तों की तरह आगे पीछे घूम रहा है। पटा लें, पट्टा डालें या हड्डी? वो नीलोफर थी जो सुखरात सिद्दीकी के सामने थी। आइंदा मेरे सामने ये बहस करने मत आइएगा। मैं इन औरतों की तरह नहीं हूँ जिनको मर्द अपने इर्द गिर्द मंडलाते हुए पसंद है। मैं किसी पर थूकना भी नहीं पसंद करती। और जो मेरा शौहर होगा वो बिज़दिलों की तरह चुप नहीं बैठेगा। अगर वो मेरा साथ नहीं दे सकता तो नहीं चाहिए मुझे। वो घुर्रा रही थी। सुखरात साहब के मुंह पर तमाचे पड़ रहे थे। वो आगे बढ़ी, दरवाजे की तरफ कदम उठाए। जो मरा था वो मेरा बाप बाद में, पहले आपका भाई था। मुझसे आपका कोई वास्ता, बिला वास्ता या बिल वास्ता रिश्ता नहीं है। आइंदा मेरे रास्ते में आए तो मैं भूल जाऊंगी कि लिहाज किसे कहते हैं। सुखरात सिद्दीकी ने मुठ्ठियाँ भींचकर उसे देखा, फिर उसके सामने खड़े हुए। मुझे पुरानी नीलोफर पसंद थी। वो झुककर बोली। उसे मारना आसान था सिद्दीकी साहब। इस नीलोफर का आप बाल भी बेका नहीं कर सकते। वो इनकी आंखों में आंखें गाड़ चुकी थी। सुखरात ने तिल मिलाकर उसे देखा, फिर गुस्से से दरवाज़ा पार कर गए। सिगरेट ने उंगली जलाई थी। बच्चे, बहुत खेल खेल गई तुम। वो ज़ेरे लबड़ बढ़ाया और किसी को कॉल कर दी।